Now today we'll be learning more tags that can be used within the body tag. मतलब body tag में कौन कौन से हम और tags use कर सकते हैं अपने text को format करने के लिए. So first tag is basically the paragraph tag. To learn all these tags, we will be making changes into the existing file that we created yesterday. जो हमने कल फाइल अपनी एक बनाई थी उसी में हम लोग चेंजेस करते हैं या फिर और वी कैन create our new file also. So we'll open our new file by going to the notepad. I told you that you can open notepad by going to the all programs, accessories, and then clicking on notepad. Now here हम HTML file create करते हैं. तो first of all the tag is HTML tag. Within HTML you have to write the head tag, and then the sub tag of a head tag is title tag, and the title tag contains the text that will be displayed on the top of your web browser. तो इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे वेब ब्राउज़र के टॉप में दिखाता है, दैट मीन्स टाइटल बार के अंदर दिखाता है. सो से आई एम गोइंग टू राइट द टाइटल एज HTML example 2. I'll close the title here. Now I'll close the head here. I'll start with the body tag here. ठीक है, and then after that you need to close the body tag. बीच में मैंने gap छोड़ दिया so that I can put my text inside the body tag, and then finally we have to close the HTML tag. तो HTML के दो सब टैग हो गए, head and body tag. Head का child tag है, that is title tag, and all these are the container tags because they have an beginning and a ending tag also. So beginning tag जैसे हमने learn किया था वो less than और greater than sign के बीच में आता है, and ending tag basically आपका less than, then slash, and then the tag name, and then the greater than sign आता है. Now we can also specify the attributes of a body if you want. So if you want to change the background color of the web page, we can write the attribute say bg color equal to, and then we can specify the color here, say hash कोई भी एक नया कलर हम देते हैं. ठीक है, I don't know what will be its output, but red is 32%, green is 57%, and 86 is basically the blue RGB. ठीक है, now here if I enter any text, so if I want that text to be displayed as a paragraph, so I can use this p tag. P tag is basically the paragraph tag. So I'm writing the text, say welcome to my website designed using notepad. This is an example. I can press enter so that you can easily see it. I'll maximize it. This is an example to demonstrate the use of some of the HTML tags that are used to format the text within the body tag. Now एक मैंने कि paragraph type में लिखा है, and if I just put here, if I just run this file, if I first of all I need to save it. For saving I'll have to click on save, and by default I'll be saving it in C drive class 11-12 programming concept HTML examples में जाके, and then here I am writing the name as example2 डॉट, इसका मैं फाइल का नाम देने के बाद डॉट लगा के आपको HTM या HTML जरूर लगाना है. ठीक है, I'll click on save, and if you run this file you have to go to the same folder, say E class 11th and 12th programming concepts, then HTML, and then say example. This is example2. So if I double click, so the color आपका जो background color है जो हमने दिया था उस हिसाब से वो आ रहा है,
and then welcome to my website design using notepad, this is an example to demonstrate the use of HTML tags that are used. तो ये एक वो हो गया है, हमारा पैराग्राफ हो गया है. So you can actually use your paragraph, you can put a p tag here, and एंडिंग के में फिर से आप अगर p लगाना चाहते हो तो अपना लगाना पड़ेगा आपको पैराग्राफ टैग. सो दिस इज अगेन अ कंटेनर टैग. सो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं पैराग्राफ के वो आपके हैं. पहला आपका है अलाइन, इसमें एक ही एट्रीब्यूट है, दैट इज अलाइन. सो अलाइन इज बेसिकली यूज टू अलाइन द पैराग्राफ. इट कैन बी लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई. सो आई कैन पुट हेयर p के बाद स्पेस देके अलाइन इज इक्वल टू, अगर मैं उसको देता हूँ से सेंटर. ठीक है. सो आई क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन सेव. सो आई रीलोड इट. बाय डिफ़ॉल्ट पहले हमारा लेफ्ट लाइन था, बट अब ये सेंटर लाइन हो गया है. सेंटर लाइन को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि वेलकम टू माई वेबसाइट, दिस इज एन एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आए. सो आई कैन पुट बी आर हेयर बिकॉज आई टोल्ड यू कि बी आर इज़ अ ब्रेक टैग, और बी आर के बाद जितना भी टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आना, डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है. आई क्लिक ऑन फाइल एंड सेव. I'll open that browser and reload my file again. So once I reload, you can see this is an example next line में आ रहा है. So this is an example जो next line में हमारा आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है. यहाँ पे हमने उससे पहले br टैग दिया था. टैग्स कभी भी हमारा जो रन करते टाइम दिखाता नहीं है, उसके आउटपुट मतलब br वो समझ जाता है ब्राउज़र, ओके ब्रेक देना है, तो वो ब्रेक दे रहा है यहाँ पे. और ये हमने p अलाइन जो दिया था, दैट वाज बेसिकली व्हाट वी डिड इज वी गेव p अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. तो एट्रीब्यूट कैसे देने हैं, यहाँ पे एक स्पेस देना है, फिर एट्रीब्यूट का नाम देना है, फिर इक्वल टू लिखना है और डबल कोट्स में उसकी वैल्यू लिखनी है. ठीक है. तो हमने कहा p अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, तो सेंटर में चला गया. इंस्टेड ऑफ सेंटर वी कैन ऑल्सो पुट लेफ्ट. इफ आई गिव लेफ्ट, सी द आउटपुट लेफ्ट में चला गया वो. इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आई कैन गिव राइट. इफ आई जस्ट गो ऑन file and click on save, if I refresh it, right side right aligned हो गया ये. So it is up to you how you want to align your text. So if I want to align it in the center, I'll have to click on file and click on save again. So this is the first tag today that we have learned, a newer tag, that is the p tag. P is basically the paragraph tag and its attribute is align, and we can give either left, right, center. Justify भी होता है, but remember only these three, left, right and center. Then is the br tag. You have already learned the br tag, that is used to give a line break. That means उसके बाद जो भी text होगा br tag के बाद, it will be displayed on the next line. So br is an empty tag because empty tag इसको हम बोलते हैं क्योंकि इसका closing tag नहीं होता है. Then the next tag that we are going to learn today is the font tag. Font tag is basically used to change the size, color and the type of the font that we want to display. सो अभी जो हमने टेक्स्ट इसमें डिस्प्ले, टेक्स्ट जो दिखा रहे थे हम लोग, उसका कलर वगैरह हमें चेंज करना है. सो व्हाट वी कैन डू इज आई कैन आफ्टर p टैग यू कैन राइट हेयर फॉन्ट. ठीक है. हमने फॉन्ट टैग लगाया, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ. फॉन्ट टैग लगाया, उसके बाद मैंने दिया कलर. कलर की स्पेलिंग अगेन COLOR है, इज इक्वल टू मैंने कहा वाइट. ठीक है. उसके बाद स्पेस देके मैंने इसका साइज़ बढ़ाना है. तो पहला इसका एट्रीब्यूट है कलर, दूसरा साइज़. सो साइज़ अगर मुझे बढ़ाना है इसका टेक्स्ट का, सो आई राइट साइज़ इज इक्वल टू, अगर मैं देता हूँ से 8. ठीक है. अभी थर्ड एट्रीब्यूट भी यूज़ करेंगे, पहले दो एट्रीब्यूट देख लो, कलर एट्रीब्यूट एंड द साइज़ एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट. नाउ इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जैसे बॉडी के अंदर हमने क्या किया है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ एक टैग दिया है, पैराग्राफ टैग के अंदर फॉन्ट टैग दिया है. अब फॉन्ट टैग जो है वो पैराग्राफ से पहले बंद होगा, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, जो पहले टैग आता है वो लास्ट में बंद होता है. जैसे HTML पहले टैग आया था तो ये सबसे लास्ट में बंद हो रहा है. उसी तरीके से टेक्स्ट में भी यही काम करता है कि जो हमने बाद में टैग दिया है, ठीक है, वो पहले क्लोज होगा और जो पहले टैग दिया है वो लास्ट में क्लोज होगा. नाउ इफ आई क्लोज दिस फॉन्ट टैग हेयर, now you can see the actual output here. I'll go to file and click on save. So if I run this web page again or reload this web page again by clicking this reload button, so you can see what I have done is, I'll just show, I have increased its size to 8 and then color have been put as white.
सो यू कैन सी द आउटपुट, वेलकम टू वेबसाइट डिजाइन यूजिंग नोटपैड, दिस एन एग्जांपल। तो अच्छा, अब हम आप लोग बोलोगे कि बॉडी का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें होता है टेक्स्ट इज इक्वल टू, उसमें आप कलर दे सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल वाइट, ठीक है। तो इसका वाइट का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका वाइट का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सेव करता हूँ, सेव करता हूँ और इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो आउटपुट सेम आ रहा है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, अगर हम यहीं पे दे देंगे तो फिर फॉन्ट की ज़रूरत क्या पड़ेगी। एक तो आप वेरिएबल साइज दे सकते हो फॉन्ट लगा के, दूसरा चीज़ होता क्या है कि जब आप टेक्स्ट इज इक्वल टू वाइट लिखते हो तो पूरे जितना भी बॉडी के अंदर जितना टेक्स्ट है सबका टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टेक्स्ट कलर हेयर यू कैन एक्चुअली यूज द कलर टैग हेयर, कलर एट्रीब्यूट इन द फॉन्ट टैग, और जहाँ पे फॉन्ट बंद हो रहा है सिर्फ वहीं तक का कलर चेंज होगा। जैसे मैंने फॉन्ट जो क्लोज किया है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट हेयर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, BR से पहले लगाता हूँ, ठीक है। सो होगा क्या कि फॉन्ट टैग के अंदर कौन सा कंटेंट है, इफ़ यू सी फॉन्ट टैग के अंदर कंटेंट है वेलकम टू माय वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग नोटपैड, और उसके बाद फॉन्ट बंद हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका फॉन्ट है, तो इसके बीच में जितना कंटेंट होगा, फॉन्ट बिगिनिंग और फॉन्ट क्लोजिंग के बीच में जो कंटेंट होगा सिर्फ उसी का कलर वाइट होगा और साइज 8 होगा, बाकी का नहीं होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल का साइज वगैरह जो है वो चेंज नहीं होगा। सो आई रीलोड इट अगेन, यू कैन सी द इफेक्ट हियर। सो इन दिस केस फॉन्ट टैग जो होता है दैट इज यूज्ड टू चेंज द कलर, साइज एंड द फॉन्ट टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक टेक्स्ट का जिसके अंदर उसको एनक्लोज कर रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल का, मान लो मुझे कुछ और कलर देना है, सो आई कैन अगेन राइट द फॉन्ट टैग हियर एंड आई कैन पुट द कलर इज इक्वल टू से आई हैव गिवन रेड, ठीक है। उसका साइज मैं देता हूँ, इंस्टेड ऑफ 8 आई एम गिविंग एज 6, ठीक है। उसके बाद जो ये फॉन्ट टैग है यहाँ मैं P से पहले बंद करता हूँ, तो इसका मतलब फॉन्ट टैग कहाँ से कहाँ पर मैंने लगाया, दूसरा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस फॉन्ट और इस फॉन्ट के बीच में जितना भी टेक्स्ट है उसका साइज हो जाएगा 6 और कलर हो जाएगा रेड, और इस फॉन्ट के बीच में जितना भी टेक्स्ट है उसका साइज हो जाएगा 8 और कलर हो जाएगा वाइट। आई विल गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव अगेन एंड सी द इफेक्ट अगेन। सो यू कैन सी इसका साइज हमने 8 दिया था और कलर वाइट दिया था, लेकिन इसका हमने साइज जो है वो हमने दिया है 6 और कलर दिया हमने वाइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन using the text attribute in the body and using the color attribute in the font, ठीक है। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो इसके अंदर है हमारा क्या कहते हैं फॉन्ट के अंदर, दैट इज हमने कलर देख लिया, कलर की स्पेलिंग COLOUR नहीं COLOR, साइज हमने टेक्स्ट देख लिया, यूज टू सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट, एंड फेस, फेस से क्या होगा फॉन्ट का टाइप चेंज हो जाता है। हम जैसे एरियल देते हैं या मोनोटाइप कोरोसिवा देते हैं, तो उसका जो है फेस जो है वो लुक जो है फॉन्ट का टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे वर्ड वगैरह में हम लोग करते थे चेंज करने के लिए टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप। सो आई विल कम हियर एंड टाइप द फेस हियर, फेस इज इक्वल टू से आई टाइप इट्स मोनोटाइप कोरोसिवा, मोनोटाइप कॉर्सिवा, स्पेलिंग एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कॉर्सिवा, ठीक है। आई क्लोज द डबल कोट्स हियर, आई गो टू फाइल एंड सेव एंड रीलोड दिस पेज अगेन। सो यू कैन सी जो इसका टाइप है फॉन्ट का टाइप वो चेंज हो गया है, दैट हैज़ बीन चेंज टू मोनोटाइप कॉर्सिवा। सो उसी डिज़ाइन में वो दिखा रहा है, ठीक है। सो इस फॉन्ट से लेके इस फॉन्ट के बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो हमारा हो गया है, उसका जो टाइप हो गया है दैट इज मोनोटाइप कॉर्सिवा के फॉर्मेट में दिखाएगा, कलर वाइट दिखाएगा और साइज 8 दिखाएगा। सो वी हैव एक्चुअली लर्न पैराग्राफ टैग दैट इज P टैग, उसका एक एट्रीब्यूट है अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू या तो हम डबल कोट्स में लेफ्ट दे सकते हैं या राइट या सेंटर या जस्टिफाई भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। BR इज टू गिव अ लाइन ब्रेक, फॉन्ट इज यूज टू चेंज द साइज, कलर एंड द टाइप ऑफ द फॉन्ट। फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट हैं, कलर, साइज एंड फेस। Now the HR tag, HR tag is basically the horizontal line tag। अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो कहीं पर भी, तो जहाँ पर भी, जैसे हमने BR टैग का हम बोलते हैं एम्प्टी टैग है, वैसे ही HR इज ऑल्सो एन एम्प्टी टैग जिसका एंडिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे क्या होगा, HR टैग लगाते ही एक लाइन
ड्रॉ हो जाती है. सो यू कैन सी हियर व्हाट आई वांट इज, हमारा जो वेब पेज है यहाँ पे वेलकम टू माय वेबसाइट डिजाइन बाय यूजिंग नोटपैड है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाए, उसके बाद आए लिखा हुआ दिस इज एन एग्जांपल टू डेमोंस्ट्रेट द यूज ऑफ. ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू इज बी आर के बाद मैंने दिया यहाँ पे एच आर. सो एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल रूल. हॉरिजॉन्टल रूल मतलब एक लाइन क्रिएट करो. ठीक है. फाइल पे गया, मैं सेव पे क्लिक किया. इफ आई रीलोड दिस पेज अगेन यू कैन सी वेलकम टू माय वेबसाइट डिजाइन यूजिंग नोटपैड है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ हो गई है यहाँ पे बीच में. ठीक है. दिस इज एन एग्जांपल टू. लेकिन एच आर जब भी हम देते हैं तो पैराग्राफ टैग जो है अपने आप ही काम करना बंद कर देता है. दैट मीन्स पैराग्राफ टैग जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक काम करेगा, सिर्फ इस फोन तक. ठीक है. बी आर तक काम करेगा नॉर्मली. सो आई कैन एक्चुअली क्लोज दिस पी टैग एंड एच आर के बाद जो कंटेंट है फिर से मेरे को पी टैग यूज करना पड़ेगा अगर मैं अलाइन करना चाहता हूँ. तो आई कैन यूज पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. ठीक है. सो अब मैंने क्या किया है, पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने दे दिया है. ये पी टैग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है टैग. तो ये सेंटर में हो गया. फिर एक बीच में लाइन आ गई और फिर से मैंने पैराग्राफ टैग दे दिया है. तो पैराग्राफ टैग यहाँ से लेके यहाँ तक है. यहाँ पे बिगिनिंग है पैराग्राफ टैग की और यहाँ पे क्लोजिंग है पैराग्राफ टैग की. सो आई विल गो टू फाइल एंड सेव. दैट मीन्स एच आर शुड नॉट बी इन अ पैराग्राफ टैग बिकॉज एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होते ही वो पैराग्राफ टैग को पढ़ना बंद कर देता है. सो आई अगेन सेव इट एंड रीलोड दिस पेज अगेन. सो यू कैन सी अगेन वो सेंटर में आना शुरू हो गया है. ठीक है. नाउ हॉरिजॉन्टल रूल के हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं, कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं. सो पहला आपका है साइज. सेट्स दी साइज दैट इज थिकनेस ऑफ द लाइन. अगर हम साइज देते हैं तो कितनी मोटी लाइन चाहिए वो हम बता सकते हैं. विड्थ सेट्स द विड्थ इन परसेंट फॉर द विंडो टू बी कवर्ड. कितना परसेंट कवर होना चाहिए. यू कैन सी द आउटपुट हेयर. इफ यू सी हेयर ये पूरा 100% यूज़ हो रहा है, मतलब कि शुरू से लेके आखिरी तक यूज़ हो रहा है. अगर मैं इसको थोड़ा सा रिस्टोर करता हूँ, ठीक है, अपने ब्राउज़र को ऐसा करता हूँ, तो लाइन जो है अपने आप ही एडजस्ट हो रही है. देख रहे हो टेक्स्ट अपने आप एडजस्ट हो रहा है. तो लाइन अपने आप एडजस्ट हो रही है. तो दैट इज वी कैन स्पेसिफाई द परसेंट हाउ मच परसेंट टू बी यूज्ड ऑफ द पर्टिकुलर विंडो. विंडो का भी 100% यूज हो रहा है. वी कैन चेंज इट बाय स्पेसिफाइंग द विड्थ एट्रीब्यूट. इफ वी स्पेसिफाई द विड्थ एट्रीब्यूट वी कैन गिव इन परसेंट दैट इज विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स में से 60%. तो 60% विंडो ही कवर होगी इसमें. हम लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं using the color attribute and no shade displays the line in 2D format. So these are the 4 attributes of the horizontal line tag. So I'll come here. Now you're able to see the coding also. So HR में आके आपको attribute देना है. से size मुझे देना है. size मतलब thickness बढ़ानी है. So size आप देखो 10 देके देखो. इट्स बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड होता है. साइज 10 से आपका काम नहीं चलता. यू कैन इंक्रीज इट. देन आफ्टर दैट आपने उसका विड्थ का मतलब आपका हो गया कितना उसका परसेंट यूज़ करना है. सो इट शुड बी इन अ परसेंट. तो साइज हो गया. साइज से क्या होगा, साइज से उसका विड्थ साइज से उसका कितना चौड़े वो होगा विड्थ सेट करेगा. और विड्थ से एक्चुअल में कितनी चौड़ी मतलब कितनी लंबी लाइन होगी पर्टिकुलर विंडो के अंदर. से मैंने कहा 50% ओनली. ठीक है. फिर कॉमा करके फिर मैं सॉरी नॉट कॉमा स्पेस देके फिर मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ. आई पुट इट एज कलर इज इक्वल टू से मैंने कहा ग्रीन. ठीक है. फिर मैंने स्पेस देके लिखा नो शेड. नो शेड का वैल्यू कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको सिर्फ लिखना है नो शेड, दैट्स ऑल. तो अभी हम नो शेड हटाते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है. आई गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव. सो width basically sets the thickness of the line and width basically sets the width कि कितना परसेंट विंडो में कवर करेगा वो. if I reload this particular file again so you can see the width हमने जो उसका thickness दिया था, साइज दिया था, वो 10 दिया था तो उतना मोटा हो गया. देन आफ्टर दैट width मैंने 50% दिया था, तो जो जितना विंडो ओपन होगा उसका 50% इस्तेमाल होगा. जैसे मैंने उसको रिस्टोर किया तो फिर अपने आप ही वो एडजस्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है. तो जितनी विंडो है उसका सिर्फ 50% इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. नाउ विल सी नो शेड एट्रीब्यूट ऑल्सो. हम यहाँ पे HR टैग में ही यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं अगर नो शेड लिखते हैं. ठीक है. फाइल पे जाते हैं
और सेव पे क्लिक करते हैं एंड उसको रीलोड करते हैं वापस। सो अभी आपको इफेक्ट इसमें पता नहीं चल रहा है बिकॉज थिकनेस हमने मोटा कर दिया। अगर पतला होता तो उसकी शेडिंग जो होती है बैकग्राउंड की शेडिंग नहीं आती, एंड क्योंकि ग्रीन कलर किया हुआ है तो शेड उसमें एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहा है। इफ़ वी जस्ट चेंज द कलर, इफ़ वी जस्ट रिमूव द कलर हियर, ठीक है, आई रीलोड इट अगेन। विड्थ बड़ा है इस वजह से शेड दिखाई नहीं रहा। मैं उसका जो साइज़ है मतलब जो उसकी मोटाई है उसको भी हटा देता हूँ। मैंने इसको सेव किया, रीलोड किया, और अब दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ, नो शेड है, अब शेड देके दिखाता हूँ आपको। अभी नो शेड वाला है ये, अब जैसे ही रिफ्रेश करूँगा एक बार देखना इफेक्ट। सो अगर नो शेड देंगे तो शेड नहीं आएगा, और अगर शेड होगा तो यहाँ पे शेड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो शेड आ रहा है, ठीक है। नाउ विल सी मोर ऑफ द टैग्स, दैट इज पहले नेक्स्ट हमारा जो टैग है दैट इज़ द कमेंट टैग। कमेंट टैग बेसिकली होता है कि अगर हम अपने HTML में कोई भी एक्सप्लेनिंग टैग लगाना चाहते हैं। एक्सप्लेनिंग टैग होता है कि कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये टैग हमने क्यों लगाया है, ठीक है। जैसे पैराग्राफ टैग से पहले हम कोडिंग कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं और उसको ब्राउज़र जो है रीड नहीं करता, सिर्फ वो हमारे कोडिंग पोर्शन में दिखता है लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता आउटपुट में। दैट इज बेसिकली द कमेंट्स। कमेंट्स इज यू कैन use your own comments, you can put in your explanatory lines in your coding section and that is not being read by the browser। मतलब ब्राउज़र उसको पढ़ता ही नहीं है। जहाँ पर भी ये आपका लेस देन साइन आ जाता है, फिर एक्सक्लेमेशन साइन आता है और 2 डैश आते हैं, उसके बाद आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हो। से दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग, मैंने ये लिखा। फिर इसको बंद करने के लिए इस टैग को माइनस माइनस साइन अगेन, दैट इज डैश, 2 बार डैश लगाना और ग्रेटर देन साइन लगाना है। वंस यू पुट दिस, तो इनके बीच में जो भी कंटेंट आप लिखोगे, कितनी लाइन में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बीच में उसको रीड ही नहीं करेगा, सिर्फ कोडिंग में दिखाएगा ये दिस इज अ पैराग्राफ टैग, बट इट विल नॉट बी रेड बाय द ब्राउजर। सो इफ यू रीलोड दिस पर्टिकुलर फाइल, नो इफेक्ट विल बी डिस्प्लेड हियर, ठीक है। So you can add your own text to your coding section by that you don't want to be read by the browser, by putting less than sign, exclamation sign, 2 dash, and then whatever text you want to write, and to close that particular text, comment tag, less than sign, sorry, 2 बार dash and then the greater than sign, ठीक है। Now next tag is basically your B tag. B is basically the bold tag। अगर कोई भी कंटेंट को आपको बोल्ड करना है, सो इफ़ यू वांट टू मेक एनी कंटेंट टू बी बोल्ड, ठीक है। सो जैसे इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू माय वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग नोटपैड। अब नोटपैड शब्द को सिर्फ आपको बोल्ड करना है, तो यू कैन पुट बी टैग हेयर एंड क्लोज द बी टैग आफ्टर नोटपैड। सो व्हाट विल हैपन इज ओनली दिस टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन बोल्ड, ठीक है। Here output is being displayed, नोटपैड जो है वो बोल्ड में हो गया है। यू कैन सी वेलकम टू माई वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग नोटपैड, तो उसमें यूजिंग के बाद नोटपैड का अपना अलग ही इफेक्ट आ रहा है। आपको अगर यहाँ पे पता नहीं चल रहा तो आई जस्ट डिक्रीज इट्स साइज हियर, इंस्टेड ऑफ 8 आई गिव 4, ठीक है। सेव इट, देखो वेलकम टू वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग, तो नोटपैड अलग से बोल्ड आ रहा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट विद इन द सेम पैराग्राफ टैग, ठीक है। I'll put it 6 में भी इफेक्ट आएगा। सो नोटपैड देख रहे हो बोल्ड हो गया है। सो नेक्स्ट टैग इज बेसिकली द आई टैग। आई टैग होता है हमारा इटैलिक करने के लिए। नाउ अगर किसी को इटैलिक करना है, मान लो जो नोटपैड लिखा है इसी को इटैलिक करना है, तो आई कैन पुट आई टैग हियर। और मैंने आपको बताया था जो टैग बाद में शुरू होता है वो पहले क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आई विल क्लोज द आई टैग एंड बोल्ड, क्योंकि पहले शुरू हुआ था तो हम उसको बाद में करेंगे क्लोज। सो इसको नेस्टिंग ऑफ टैग्स भी बोलते हैं, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी आ सकता है इसमें, ठीक है, बॉडी के अंदर। सेव किया हमने, इसको रीलोड करते हैं। तो बिकॉज इट्स अ मोनोटाइप कॉर्सिवा, सो उसमें इटैलिक सारा टेक्स्ट होता है इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा है। सो आई विल मेक इटैलिक
से डेमोन्स्ट्रेट को मुझे इटैलिक करना है, सो आई विल पुट आई हेयर। और ऐसा नहीं है कि डेमोन्स्ट्रेट द मतलब कि खाली डेमोन्स्ट्रेट एक ही वर्ड को कर सकते हैं, जहाँ तक आप आई टैग के अंदर एनक्लोज करोगे जिस टेक्स्ट को भी, वो पूरा इटैलिक हो जाएगा। मतलब डेमोन्स्ट्रेट द यूज जो है मैंने उसको आई टैग के अंदर बीच में डाल दिया है, ठीक है। सो इफ आई जस्ट सेव इट एंड रीलोड इट अगेन, यू कैन सी दिस इज एग्जांपल 2, और डेमोन्स्ट्रेट द यूज जो है वो इटैलिक हो गया है, दैट मीन्स थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है टेक्स्ट वो, ठीक है। सो बोल्ड टैग हो गया हमारा, इटैलिक टैग हो गया, अंडरलाइन। किसी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है, so you can use the I tag u tag here. So if you want this demonstrate the use जो है उस word को आपने underline भी करना है, so you can put u tag here and close the u tag before I because we have put the u tag after I, ठीक है। तो closing उसकी जो होगी u की वो पहले होगी as compared to the I tag. So I'll go to file and click on save and reload the page again. You can see demonstrate the use जो है वो underline भी हो गया है, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन यूजिंग बी टैग, आई टैग एंड यू टैग। ये 3 रिस्पेक्टिव टैग्स हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए। नाउ नेक्स्ट टैग इज द टी टी टैग, दैट इज टाइप राइटर टैग। अगर जैसे टाइप राइटर फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हो, टाइप राइटर के तरीके से आप लिखना चाहते हो, तो यू कैन यूज़ द टी टी टैग, ठीक है। सो टी टी टैग हम दिखाते हैं। यहाँ पे हम कोई नया टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज अ टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन टी टी टैग, ठीक है। तो अब इसको जो मैंने टेक्स्ट है दिस इज अ टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन, उसको मैं टी टी में इनक्लोज कर देता हूँ। टी टी मैंने शुरू में लिखा और उस टी टी टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। टी मीन्स टाइप राइटर टेक्स्ट। फाइल पे जाके सेव किया, आई रीलोड इट। सो टाइप राइटर में जैसे टाइपिंग होती है वैसा आपका दिखाता है इसमें, ठीक है। नाउ टी टैग हो गया। नाउ स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे होते हैं कि आपको अगर लेस देन साइन दिखाना है, तो अगर आप जैसे इसमें आते हो तो यहाँ पे अगर फॉर्मेट के बाद या कहीं पर जैसे मान लो आपको लिखना है, से फॉर एग्जांपल यू वांट टू राइट, मैं बी आर टैग देता हूँ पहले so that it is displayed in the next line। यहाँ पे अगर मुझे दिखाना है से 2 लेस देन 3, ठीक है, 2 लेस देन 3, लेकिन लेस देन का स्पेशल मीनिंग होता है HTML में, बिकॉज ये टैग को एनक्लोज करने के लिए यूज होता है लेस देन साइन। सो इफ यू वांट टू एक्चुअली डिस्प्ले द लेस देन साइन, so instead of using this less than sign you have to write ampersand lt and semicolon। जब आप एम्परसेंड lt और सेमीकोलन लिखोगे सो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लेस देन साइन में। सो आई गो टू सेव फाइल एंड सेव एंड रीलोड द पेज अगेन। सो व्हाट विल हैपन इज दिस इज अ टेक्स्ट एनक्लोज इन टी टैग के बाद 2 लेस देन 3 आ जाएगा। सो देख रहे हो एम्परसेंड मैंने लगाया था, lt एंड देन सेमीकोलन, एम्परसेंड lt मतलब लेस देन ऑन सेमीकोलन, तो लेस देन साइन आ रहा है, वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। सो दीज आर द सम स्पेशल कैरेक्टर्स। आपको अगर ग्रेटर देन साइन लगाना है, जैसे आपको लिखना है, मैं नेक्स्ट लाइन में दिखाता हूँ आपको, बी आर टैग दिखाया, मैंने कहा 5 ग्रेटर देन साइन लगाना, तो ग्रेटर देन अगेन मैं अगर ये साइन लगाता हूँ तो वो इसको रीड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये जो है लेस देन और ग्रेटर देन साइन HTML में स्पेशल मीनिंग रखते हैं, बिकॉज सारे टैग इन्हीं के अंदर एनक्लोज होते हैं। सो इस वजह से इफ़ यू वांट टू पुट अ ग्रेटर देन साइन यू हैव टू राइट एम्परसेंड GT एंड सेमीकोलन एंड देन से मैंने कहा 2, ठीक है। सो 5 ग्रेटर देन 2 मैंने कहा। फाइल पे गया मैं, सेव पे क्लिक किया एंड इसको मैं रीलोड करता हूँ। सो यू कैन सी 2 लेस देन 3 अगर टाइप करना है तो आपको एम्परसेंड लेस देन के लिए आपको एम्परसेंड LT सेमीकोलन लिखना है, और ग्रेटर देन साइन के लिए एम्परसेंड GT एंड सेमीकोलन अगेन लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज एंड AM सेमीकोलन एम्परसेंड साइन। अब एम्परसेंड का भी स्पेशल मीनिंग हो गया है इसमें, क्योंकि एम्परसेंड हमारा स्पेशल क्या कहते हैं कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है। सो इफ आई वांट टू डिस्प्ले एम्परसेंड साइन, सो अगेन मैं नेक्स्ट लाइन में आपको दिखाता हूँ कंटेंट कुछ लिख के। मैंने लिखा से HTML एंड जावा, ठीक है। फाइल पे गया, सेव पे क्लिक किया, रीलोड करता हूँ, तो अभी तो फिलहाल HTML एंड जावा आ रहा है, बट कुछ ब्राउजर्स इसको एम्परसेंड को रीड नहीं कर पाते हैं।
तो अगर वो एम्परसेंड साइन नहीं दिखाता है, सो यू कैन यूज़ एम्परसेंड AMP एंड सेमीकोलन। एम्परसेंड AMP सेमीकोलन लगाने से क्या होगा कि वही एम्परसेंड साइन डिस्प्ले होता है। और अगर आपको बीच में मतलब जैसे HTML और जावा के बीच में बहुत सारे स्पेसेस देने हैं, मान लो मैंने बहुत सारे स्पेसेस दे दिए HTML और जावा के बीच में, फाइल पे गया, सेव पे क्लिक किया, रीलोड करता हूँ, लेकिन यहाँ जो स्पेसेस दिए थे मैंने जावा से पहले वो तो स्पेसेस आ ही नहीं रहे, बिकॉज जो HTML है वो स्पेसेस को रीड नहीं करता, लाइन ब्रेक्स को रीड नहीं कर पाता जो नोटपैड में है। सो अगर आपको एक से ज़्यादा स्पेस, एक स्पेस के बाद वो एक्स्ट्रा स्पेस रीड ही नहीं कर पाता, मान लो यहाँ पर मैंने स्पेस देना है बहुत सारा, द टेक्स्ट विद इन द, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे दिया, फाइल पे गया, सेव पे क्लिक किया, रीलोड करता हूँ तो कहीं पे भी तो स्पेस आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये टेक्स्ट में यहाँ पे टेक्स्ट के बाद मैंने स्पेस दिया था, कोई आ ही नहीं रहा है। सो इन दिस केस यू हैव अ टैग विच दैट इज एम्परसेंड NBSP। ठीक है, सो दैट इज ब्लैंक स्पेसेस। नो, एंड NBSP आप एक बार लगाओगे तो एक स्पेस आ जाएगा, दोबारा लगाओगे NBSP एम्परसेंड NBSP, दो स्पेस आ गए, एम्परसेंड NBSP 3 स्पेस आ गए। आप इसको कॉपी करके कितनी बार इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। मैंने पेस्ट किया तो 6 स्पेसेस आ गए। अब इन जो ब्लैंक स्पेसेस है उनका मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये स्पेसेस को रीड नहीं करता, ये सिर्फ एक स्पेस को रीड करता है, उसके बाद कुछ नहीं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो टेक्स्ट और विदिन के बीच में देख रहे हो गैप आ रहा है, क्योंकि हमने एंड NBSP 6 बार दिया है, तो 6 स्पेसेस का गैप बीच में आ गया है। एक स्पेस का तो आता ही आता है, देन 6 और एक स्पेस जो आ रहा है वो दैट इज द 7th स्पेस। ठीक है, सो सिमिलरली इफ आई वांट टू गिव अ गैप बिटवीन HTML एंड जावा से पहले स्पेस देना है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट एंड NBSP सेमीकोलन एंड NBSP सेमीकोलन। 3 बार मैंने दिया तो 3 स्पेसेस आ जाएंगे। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे स्पेस आ गया। अगर मैं और देना चाहता हूँ आई कैन कॉपी एंड पेस्ट दैट NBSP, तो 6 टाइम्स मैंने दे दिया, रीलोड करता हूँ तो और स्पेस आ गया। सो स्पेसेस देने के लिए HTML में यू हैव टू राइट एंड NBSP। आपकी नोटपैड में स्पेसेस देने से वो नहीं डिस्प्ले करेगा, बिकॉज इट इज़ अ टैग्ड लैंग्वेज। सो वी हैव read all these tags, so you just see today we have learned the paragraph tag। पैराग्राफ टैग का एक ही एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन इज इक्वल टू हम लेफ्ट दे सकते हैं डबल कोट्स में, या राइट दे सकते हैं, या सेंटर, या जस्टिफाई। बी आर टैग इज यूज टू गिव अ लाइन ब्रेक, उसके बाद जो भी टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करेगा। देन वी हैव सीन द फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग इज यूज टू चेंज द कलर और द साइज और द फेस। फॉन्ट टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट आएगा उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं यूजिंग कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी कलर देंगे वो कलर दिखाई देगा। साइज इज इक्वल टू डबल कोट्स में जैसे 5 दिया 6 दिया तो वो साइज जो है सेट हो जाएगा पर्टिकुलर टेक्स्ट का। और फेस हम फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं यूजिंग द फेस एट्रीब्यूट। ठीक है, देन वी हैव लर्न द HR टैग दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। इससे एक लाइन क्रिएट हो जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके एट्रीब्यूट है साइज, साइज से थिकनेस बढ़ती है। विड्थ से हम परसेंट में दिखा सकते हैं कि कितने परसेंट का विंडो हमें इसमें कवर करना है। देन द कलर, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। नो शेड से उसको टू डायमेंशनल फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करेगा। देन दी कमेंट टैग। कमेंट टैग में जो भी हम कमेंट्स लिखेंगे दैट विल बी इग्नोर्ड बाय योर वेब ब्राउजर, इट विल नॉट बी रेड। कोडिंग में होगा लेकिन उसको वो रीड ही नहीं करेगा। बी टैग बोल्ड करने के लिए किसी टेक्स्ट को, आई टैग किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने में के लिए, यू टैग किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। अगर टाइपराइटर टेक्स्ट लिखना है, मतलब टाइपराइटर फॉन्ट में लिखना है टेक्स्ट को, तो यू कैन गिव द TT टैग। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड विद इन योर HTML कोडिंग इज %LT। सो लेस देन साइन दिखाने के लिए %LT सेमीकोलन, ग्रेटर देन साइन दिखाने के लिए %GT सेमीकोलन, एम्परसेंड साइन दिखाने के लिए, ये जो एम्परसेंड साइन है इसको दिखाने के लिए एंड AMP सेमीकोलन, और स्पेसेस देने के लिए एंड NBSP सेमीकोलन। ठीक है, थैंक यू।